Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teach you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 1 economic and introduction. As you all know, we have already seen few portions of the chapter. So today we are here to see the part 5 of the chapter. So students, let us move on with a short summarization of the revision of the previous video. So previously we have seen about the microeconomics and macroeconomics in a very detailed manner. So what is microeconomic? When any individual is studied up in a marginalism manner, which means when an individual unit is studied up by his rational behavior, is considered as the microeconomic, in which we have seen the labor factor of production, rather than that the demand, the supply, price determination of a particular product. These all things have been considered up in the microeconomic. After that, we have seen in a very detailed manner about the macroeconomic. Macroeconomic means the whole unit of an particular topic, which means in economic we can say that unemployment, poverty, national income, these all things are considered as macroeconomic. Even I have explained you that microeconomic means the microscopic view of any particular unit, whereas the macroeconomic means the bird eye view. So from far if you are seeing something, it looks small. In that manner, the macroeconomic consider each and every portion in a very small portion, but in a very depth manner. Back in microeconomic, each and every single individual is being given importance and it is being studied up in a very rational behavior. Rather than that, we have seen that after that how to present the data in the economic. We can say that analysis. When we are studying in economic, we get many information and data. How to show that data in the economic presentation. In that we have seen that for economic analysis and study, we must know the information's presentation in a very proper manner. So in that we have seen three types of presentation. First one is descriptive manner. Second one, if you are seeing after the descriptive manner, the way of data table. And third one, if you are seeing, it is of the portion of showing it in a graph portion. So first one, if you are considering descriptive manner, means to say up in a theoretical way, we can say that when a price falls down, the demand expands, vice versa. So this shows that when a price is falling down, at that time the demand is always getting expanded, means increased. So in this manner you can show in the descriptive manner. After that we have seen the data table. Even we seen an example of data table. When 20 people are there, 20 rupees kilo, 20 people are affording. When it comes to 15 rupees, 14 people are affording. When it coming to 10 rupees, at that time 60 people are affording. When it comes to 5 rupees, 80 people are affording. In this manner we have seen a table. After that we have seen the representation of that same portion in the graph. We have seen, we have made the y-axis, x-axis, point of origin, then we given the dotting or the measurement of the y-axis 5, 10, 15, 20 and 25. One more we have to take, we have seen in that example. After that 20, 40. In this manner we have allotted the demand also. In y we have given the cost, in x we have given the effect. The cause and the effect must be seen up. After that the relationship between the cause and the effect, we have gone for the equilibrium point. On 20, the 20 demand was been seen up. Then we kept it as a, then B, then C and D, and we connected the points. So we, after connecting that points, we got a curve. That curve was considered as demand curve. We have seen that it was on a slope down way, or we can say that down forward way, which was considered as a positive slope. Why? Because it was been increasing in demand. Again we see in the second example, when it rises up, the price is rising. At that moment, what is happening? At that moment also we have seen the demand curve was been on the upward rise, which was considered as a negative slope. In this manner we have seen the portion of the presentation of economic information in data in a very proper way, in depth. I hope you all have understood that. So today we are going to continue with the further portion. So without wasting the time, let us move on with the PDF portion in the further video and see the further topic. So students, I hope that
let us move on with the So students, now let us move on with the today's portion. So today's portion is importance of statistical information. Why the statistical information are very important in the economics that we are going to see. The importance of statistical information in economic can be stated as under. So first point is statistical information supports or confirms a principle. I'm going to read it out, listen it out carefully. Philosophy of economics observes human behavior and scientific tools in economic establish principles and theories to test the validity of such theories in real life at different times and places. Information from real life activity at such different times and place is necessary. Such information can be collected and presented in quantitative terms with the help of statistical tool. From example, statistical data on rainfall and agriculture production in a region at one time at different times helps to understand the cause-effect relationship between rainfall and agriculture production with economical theory has already established. Likewise, data on price of commodity and its demand can help on confirm the theoretical relationship established by economic between two. So statistical information supports और confirms a principle. Statistical information हमें जो मिलते हैं कोई भी इकोनॉमिक टॉपिक के ऊपर वो कहीं ना कहीं हमें जो है एक प्रिंसिपल को कंफर्म करने में हेल्प आउट करता है. फिलोसॉफी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है और उसके साथ इकोनॉमिक टूल्स जो इकोनॉमिक्स में देखे जाते हैं उसको प्रिंसिपल और थियरीज को टेस्ट करने में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया जाता है. उसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के सच थियरीज रियल लाइफ में काम करते हैं कि नहीं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्लेस में वो इन्फॉर्मेशन कैसे रियल लाइफ एक्टिविटी में सच डिफरेंट प्लेसेस में ये नेसेसरीली होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझने के लिए हमें जो है ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट करता है. ये जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, नंबरिंग में. जैसे हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल 20 में 20 था, 15 में 40 हुआ, तो ये नंबरिंग क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिया जाता है जो कि स्टैटिस्टिकल टूल्स के हेल्प से कलेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा की, अगर हम बात करते हैं रेनफॉल एग्रीकल्चर में कैसा इफेक्ट देता है पर्टिकुलर रीजन, जैसे हम मान लेते हैं कि गुजरात के अंदर लास्ट ईयर कितना रेनफॉल देखा गया, उसके प्रीवियस ईयर कितना देखा गया, उसमें प्रोडक्शन कितना देखा गया. इस तरीके से डिफरेंट रीजन ले लो, डिफरेंट टाइम ले लो, या पर्टिकुलर एक गुजरात में अलग अलग टाइम पीरियड ले लो, या गुजरात में कितना था, हरियाणा में कितना था, पंजाब में कितना था, ऐसे अलग अलग रीजन ले लो. सारी चीज़ों में कॉज क्या है, रेनफॉल, उसका इफेक्ट क्या है एग्रीकल्चर में. तो कॉज और इफेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें स्टैटिस्टिकल डेटा जो है या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन समझाता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात किया अभी हमने, बट उसी तरीके से हमने एग्जांपल लास्ट टाइम क्या देखा था, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस और उसका डिमांड. उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई का कॉज एंड रिलेशनशिप का जो स्टेटस है ये भी हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं. इस तरीके से इकोनॉमिक्स में दो जो टॉपिक्स होते हैं उस दो टॉपिक का जो इंटरकनेक्शन होता है कॉज और इफेक्ट, वो चीज़ हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकेंड पॉइंट. गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर. With the help of economic data, we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in economic parameter. For example, we can know how sales revenue of a particular firm is changing, or we can know the trend of employment in a nation, or we can know the trend of production in different sectors of economic. For instance, we can say that the share of agriculture is falling in national economic or national income, or supply of money is rising in the economy. Such data helps individual unit to make appropriate decision to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policies. अगर economic data हमें मिलता है तो उसके हेल्प से हमें ऑब्टेन एक आइडिया किया जा सकता है, हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन से डायरेक्शन में कौन से मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की ज़रूरत है इकोनॉमिक पैरामीटर के अंदर. फॉर एग्जांपल हमने ये देखा
कि जो 20 रुपीज़ था तो उसमें 20 की थी, जब 15 रुपीज़ हुआ तो 40 हुआ, जब 10 रुपीज़ हुआ तो 60 हुआ। तो यहाँ में हमें एक आइडिया मिला कौन सा डायरेक्शन, यानी भाव गिरता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक पैरामीटर इन द सेंस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका डायरेक्शन या उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कौन से डायरेक्शन में हमें चेंज लाना है, ये सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पैरामीटर में हेल्प आउट करने के लिए मिल सकता है अगर हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है तो। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर फर्म में कितना सेल्स हुआ, लास्ट टाइम ABCD फर्म में 10,000 सेल्स हुआ, तो उस ट्रेंड उसमें हमें पता चला कौन सी चीज का सेल हुआ, तो अभी चारकोल का ज्यादा यूज हुआ तो चारकोल का सेल ज्यादा देखा गया। इट मीन्स हमें एक बिजनेस फॉर्म में भी क्या बेसिक नेसेसिटी चेंज लाना चाहिए सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो भी हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ही दे सकता है। इवन हम डिफरेंट सेक्टर्स में नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर है उसकी कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाए, तो किसकी बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर का भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर भी हमें एक आइडिया ग्रैब अप करने की चांस अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है तो मिलता है। सप्लाई ऑफ मनी, आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी अभी ज़्यादा देखा जाता है, पैसे की वैल्यू नहीं हो रही है, क्योंकि जब लास्ट 15-20 ईयर्स बैक अगर देखो 1,000 रुपये कमाते थे लोगों की घर चल जाती थी, अभी वो 10,000 का 10,000 हो गया तो अभी घर नहीं चल पाता। तो इस तरीके का सप्लाई ऑफ मनी भी ज्यादा देखा जाता है। तो ये जो इंडिविजुअल यूनिट है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करता है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए, हमें बेनिफिट मिलता है। इवन गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेने के लिए हेल्प आउट ये किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा हमने जो लास्ट टाइम देखा 10, 20, 30 इस तरह के न्यूमेरिक जो डेटा हमें मिलता है ये कहीं ना कहीं हमें अप्रोप्रिएट डिसीजन इवन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि गवर्नमेंट को भी अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम अप करने में हेल्प आउट करता है। इन शॉर्ट चेंज हमें आइडिया देता है कि जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उस ट्रेंड के बारे में हमें एक आइडिया देता है और उसको कैसे मॉडिफाई करना है और उसमें कैसे चेंजेस लाना है ये भी हमें एक आइडिया के रूप में मिलता है अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है तो। थर्ड वन, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी. If appropriate statistical data are obtained, then comparison of the parameter over different time period across region and across nation can be made. For example, we can compare growth rate of India's national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomic parameter like per capita income, inflation, etc. with those of other countries like USA, UK and चाइना एक्सेट्रा। तो कंपैरेटिव स्टडी को इजी बनाता है अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डेटा है, यानी हमें पता है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट टाइम 9.6% देखा गया, तो अगर हमारे पास ऐसा पैरामीटर का स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत ही रियलिस्टिक में मिला हो और ओवर द पीरियड, ये तो मैंने गए बार का बोला, उसके 10 साल पहले 6.6 था, इस तरीके से 10 था, 12 था, इस तरीके से अगर हमारे पास वेरियस टाइम पीरियड का जो डेटा मिलता जाए तो अक्रॉस रीजन, यानी हम ये देख सकते हैं गुजरात में कितना अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया, MP में कितना देखा गया, इवन नॉट ओनली एक पर्टिकुलर स्टेट और रीजन बट पर्टिकुलर नेशन का भी देखा जा सकता है, जैसे इंडिया में इतना है, USA में इतना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है 1951 से 2050 तक का मिल जाता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, नेट में हमें मिलेगा, आगे जैसे चैप्टर जाता जाएगा वैसे तुम्हें वो सारे टेबल दिखाए जाएंगे। ऊपर जो है वो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, जो 20 रुपीज़ में 20 वो एक सिर्फ एज्यूमेशन था, बट रियलिस्टिक में भी अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी में ये सारे डेटा हमें देखने को मिलते। तो उससे हमें क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जो मैक्रो पैरामीटर माने जाते हैं वही हम दूसरे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम मान ले कि लास्ट ईयर नेशनल इनकम इंडिया का जो है वो 10 लाख था, USA का 12 लाख था, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, 10 लाख 12 लाख, यानी USA अच्छा कर रहा है। इस तरीके से कंपेरिजन को ईजी करने के लिए इकोनॉमिक में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें हेल्प आउट करता है। Last one, but not the least one, to make precise presentation of fact. Sometimes fact about economic parameter can be represented more clearly with the help of statistical data and graph. Graph showing inflation, agriculture production,
Regional disparity in incomes can give clearer picture of that trend as compared to what description in words can do. Thus it can be easily understood by lay person. तो अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट का इतना परसेंटेज था, उतना परसेंटेज, ऐसे में जब आपको थियोरेटिकली कुछ चीज़ें बताऊं तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप अभी इसके लिए नए हो। बट अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता है लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम देखा, डायग्राम देखने के बाद आपको इजीली वो चीज़ समझ में आया। उसी तरीके से अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, जो कि थियोरेटिकल में समझाने में लोगों को कम समझ में आ सकता है, बट ग्राफ से जल्दी समझ में आ सकता है। जैसे कि ग्राफ इन्फ्लेशन, महंगाई बताए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बताए, रीजनल डिस्पैरिटीज यानी अलग अलग रीजन में इनकम की कैसे अनइक्वालिटी देखी जाती है ये बताए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक क्लियर पिक्चर दे देगा और उससे हमें ये चीज़ जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ हमें ही नहीं, ले पर्सन मतलब जन साधारण, जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते ना हो, इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ा ना हो, तो वैसे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो इजीली समझ में आ सकता है। बट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, हम एक चीज को ग्राफ में कब प्रेजेंट कर सकते हैं, जब हमारे पास उसका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन को प्रिसाइज करने में हेल्प आउट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को कंफर्म करता है। सेकेंड, कौन से ट्रेंड में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक पैरामीटर में क्या चेंजेस देखे जा रहे हैं वो समझने में हमें हेल्प आउट करता है। थर्ड, कंपैरेटिव स्टडी, दो चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी करने में हमें हेल्प आउट करता है। फोर्थ है, अगर हमें उसे ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो वो प्रेजेंटेशन के लिए भी हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे खत्म होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इन इकोनॉमिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम रिक्विजिट्स एक्सेप्ट्स in collecting statistical information and presenting it in data, diagram and chart। अगर हमें statistical information की ज़रूरत है जो डायग्राम, ग्राफ या चार्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये जो डेटा होता है इसमें लोग बिलीव करते हैं, तो इसको बिलीवेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो नीचे दिया गया है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, चार्ट, ग्राफ। These are helpful in explaining some economic principle, trends and relationship in a simple and suggestive manner. Such a representation also become attention catching. While constructing such diagram, the following particular must be carefully considered। ठीक है, तो जब हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम, चार्ट या ग्राफ के अंदर, उस टाइम पे हमें बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ट्रेंड, रिलेशन को बहुत ही सिंपल और सजेस्टिव मैनर में एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी माना जाता है। ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो अटेंशन कैचिंग होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको थियरी में कोई चीज़ें बताया जाए और प्रैक्टिकली उसको ड्रॉ करके समझाए तो आप क्या ज़्यादा देखोगे, तो ड्रॉ किया हुआ। तो अटेंशन कैचिंग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम या पर्टिकुलर चीज़ों की, तो हमें क्या चीज़ों को बहुत ध्यान से करना चाहिए वो नीचे बताया गया है स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए। जैसे कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कैसे वैलिड है ऐसा समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। सो लेट अस मूव ऑन दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। The source of data must be reliable, universally expected to ensure their accuracy. For instance, to obtain information regarding growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is reliable source. To obtain comparative data for such parameter for different countries of the world, World Development Report is reliable and universally accepted sources। हमें ये जो डेटा मिलता है, जो टेबल मिलता है, ये टेबल हर एक टेबल भरोसे के लायक नहीं होता, हर एक टेबल रिलायबल यानी विश्वास करने के लायक नहीं होता। तो डेटा कैसा होना चाहिए, विश्वास करने के लायक होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए।
उसकी जो एक्यूरेसी है यानी उसकी जो डेटा है वो डिटेल में सच है ये समझने की लोगों को कैपेसिटी होना चाहिए। रदर देन दैट लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? हम ये मान लें कि अलग अलग पैरामीटर्स इंडिया में डेवलप होते हुए नजर आते, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? तो इंडिया के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप अगर आज नेट पे सर्च करके देखोगे गूगल कॉर्म में www.economic survey of India, तो उसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। दूसरा, जो डेटा CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है उसमें भी हम विश्वास करते हैं। ये तो बात किया सिर्फ इंडिया का। अगर हमें फॉरेन कंट्री का कोई डेटा चाहिए तो हम वो डेटा कहाँ से निकालें? अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कोई भी पैरामीटर का फॉरेन कंट्री का कोई भी डेटा चाहिए तो हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे ही विश्वास करना चाहिए। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा डाल के देखोगे तो आप पर्टिकुलरली अलग अलग कंट्री का देखने मिलेगा। तो कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी हम प्रेजेंटेशन के लिए देखें उसके पहले वो सोर्स रिलायबल है कि नहीं, उस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, ये चीज पहले हमें कंसिडर करना पड़ता है। So students, let us see the second point, clarity regarding dependent and independent variable. Where there is a cause-effect relationship between variable, then the cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as dependent variable as its values are dependent as on the values of the independent variable. In such relationship, data pertaining to the independent variable must be represented on the x-axis and that pertaining on the dependent variable must be represented on the y-axis. For instance, if we are examining the relationship between rainfall and agriculture production in the region, then rainfall is the independent variable on the represented on x and the agriculture production on the dependent variable therefore represented on the y axis. If we are examining production over different time period, then the time period are represented on x axis and the production on y axis. In economic, the law of demand, however, price is the independent variable represented on the y-axis and the demand which is dependent variable represented on the x-axis. तो clarity of dependent and independent variable, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था cause and effect, cause हमेशा y पे होता है, effect हमेशा x पे होता है, उसमें हमने प्राइस को y पे रखा और जो है डिमांड को x में रखा। ये प्राइस और डिमांड था। प्राइस और डिमांड इकोनॉमी में बहुत ही अलग तरीके से दिए जाते हैं जो कि पैराग्राफ में लास्ट में भी समझाएगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्राइस माना जाता है वो y पे रखा गया और जो x है वो डिपेंडेंट है, डिमांड वो x पे रखा गया। इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझना है कोई भी वेरिएबल का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट होता है उसी का इफेक्ट डिपेंडेंट में देखने को मिलता है। ऐसे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट करता है। हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको x में ही दिखाना है। तो अभी x में ही दिखाना है तो प्राइस में हमने क्या किया, y में दिखाया। क्यों? क्योंकि वो प्राइस है और वो कॉस्ट है। तो उसी तरीके से डिमांड में डिफरेंशली देखा जाता है। बाकी डिमांड के अलावा जैसे एग्रीकल्चर और रेनफॉल की बात करते हैं, रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल जो है इंडिपेंडेंट होता है, वो कभी भी गिर सकता है, उसमें किसी की चलती नहीं। तो उसे हमें कहाँ दिखाना है, तो एक्स एक्सिस में दिखाना है। तो उसका डिपेंडेंट, उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट, तो उसे हम वाई में दिखाएंगे। इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स में दिखेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई में दिखेगा। जस्ट प्राइस और डिमांड डिफरेंटली देखे जाते हैं, इसलिए उसमें इंडिपेंडेंट वाई में देखेगा और डिपेंडेंट एक्स में देखा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बाद प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन का भी सेम होता है। प्रोडक्शन में भी जो प्रोडक्शन का पोर्शन होता है, वेरियस टाइम पीरियड जो होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड, वो हम एक्स में दिखाते हैं, जबकि प्रोडक्शन यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है वो हम वाई में दिखाते हैं। यानी टाइम पीरियड को हम एक्स में और उसका जो पोर्शन है यानी प्रोडक्शन है वो वाई में दिखाएंगे। यानी हमने इसमें 3 टॉपिक देखा। क्या टॉपिक देखा? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट को एक्स में दिखाना है, डिपेंडेंट को वाई पे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिपेंडेंट रेनफॉल ऐसी सारी चीज़ें तो वो हम एक्स में दिखाएंगे और उसका जो इफेक्ट है
वो हम वाई पे दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो प्रोडक्शन देखा जाता है पर्टिकुलर ईयर, वो हम एक्स में दिखाएंगे, और वो जो प्रोडक्शन में जो चेंजेस देखा गया यानी इफेक्ट देखा गया वो वाई में दिखाएंगे। ये दो टॉपिक क्लोज। थर्ड, डिमांड एंड प्राइस की अगर हम बात करते हैं, प्राइस जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद लॉ ऑफ डिमांड डिफरेंट है, इसलिए हम उसको वाई पे दिखाएंगे, और बाकी का जो टॉपिक है वो हम एक्स पे दिखाएंगे, यानी डिपेंडेंट जो है वो एक्स पे दिखाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल। In order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scales must be taken on both the axes. Scales are measures taken to represent and actually depends in the diagram. If actual data is too large, say in 00 or in 0,00, then such data cannot be directly represented in chart, hence its representation after converting it into measures or in appropriate scale. For example, in a diagram, a distance of 1 centimeter is equal to 10,000 unit, 1 centimeter is equal to 5 years, and so on, or such scales are taken on the both side. अप्रोप्रिएट स्केल भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमें डायग्राम बनाना है तो उसके लिए एक क्लैरिटी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट साइज और स्केल होना चाहिए, वो दोनों एक्सिस में, एक्स और वाई दोनों में। हमने लास्ट टाइम बनाया था तब हमने देखा था 5 का हमने गैप लिया, फिर 20 का गैप लिया, उसी तरीके से। बट अगर डेटा बड़ा हो तो वो तो सिर्फ 10-20 का, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट। अगर हम 5 रखते हैं, 5 सेंटीमीटर, उसका मतलब वो 50,000 यूनिट लिया। इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करके फिर डेटा टेबल में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स आने वाले अलग अलग डायग्राम में, जिसमें ये कन्वर्शन के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया गया एग्जाम्पल के साथ। So today until this we are going to keep it up. I hope you all have understood this portion in a very well manner. So now it is the time for a short revision of the portion that we have seen today. I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the importance of statistical information in economics. Economics में statistical information क्यों important है? First of all, अगर हम बात करते हैं statistical information की, statistical information हमें कहीं ना कहीं knowledge देता है कि हमें क्या चीज़ किस तरीके से देखने को मिल रहा है, यानी हर एक चीज़ का quantitative terms में हमें value मिल जाता है। सेकेंड, वी हैव सीन दैट अगर हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए हमें पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट का इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम कोई भी कंपैरिजन करके हमारी अभी क्या पोजीशन है ये जान सकते हैं। थर्ड, हमने देखा चेंज इन ट्रेंड। काफ़ी बार ये देखा गया इकोनॉमिक पैरामीटर में चेंज आता है, जैसे मैं बोल रही हूँ इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अभी कम हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। हाउ दिस आई केम टू नो बाय द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कौन से ट्रेंड की और वो चेंज हो रहा है, उसका एक आइडिया हमें कहीं ना कहीं देता है। सो ये 3 टॉपिक के बाद चौथा टॉपिक हमने ये देखा, अगर हमें डायग्राम, ग्राफ, ये सारी जगह पे उसको रिप्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि क्लियर और प्रिसाइज प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की नीड है। आफ्टर दैट वी सीन दैट कि अगर हमें पर्टिकुलर रिक्विजिट्स की यूज़ करनी है डेटा या ये सारी चीज़ें करने में, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। फर्स्ट, हमें ये देखना है कि वो कौन से सोर्स ऑफ डेटा से आया है, यानी वो रिलायबल है कि नहीं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सर्वे जो है वो रिलायबल यानी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि जो भी सोर्स ऑफ डेटा हम प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम चार्ट में यूज़ करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, ये माना जाता है। वही अगर हमें फॉरेन कंट्री के लिए चाहिए तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो हमें रिलायबल सोर्सेज प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट वी मस्ट सी दैट कि क्लैरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रे, कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, उसी से हमें कॉज और इफेक्ट पता चल सकता है। इंडिपेंडेंट होता है वो कॉज होता है, जो डिपेंडेंट होता है वो उसका इफेक्ट माना जाता है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड में वो डिफरेंटली देखा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड में जब हम डायग्राम और ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट रखते हैं और एक्स एक्सिस में डिपेंडेंट रखते हैं। बाकी सारे टॉपिक में वो थोड़ा उल्टा है, बाकी सारी में
वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट रखते हैं और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट जब भी हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं हमें उसका स्केल जो है वो अप्रोप्रिएट वे में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डायग्राम का क्लैरिटी तभी आ सकता है जब उसका स्केल जो है वो इक्वल लेंथ में देखा जाए, तभी डायग्राम प्रॉपरली बना जाएगा। अगर एक ह्यूज डेटा दिया गया 10,000 1 लाख तो उसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका डायग्राम बना सकते हैं प्रॉपर वे में। यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। So students, I hope that you all have understood the today's topic in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.